Good evening, ladies and gentlemen, and thank you very much for your support during the elections. Times Now, once again, the Election News headquarters got all your support and viewership, and we are the #1 channel, not just on counting day, but also throughout the week. So thank you very much for your support. Coming back to the big story today. Shock, awe and horror. That is what the entire nation experienced yesterday as images started filtering, filtering in of an unprecedented breach of security in the hallowed portals of Parliament. It was a well-planned and coordinated attack on the heart of democracy. We now know that 6 people from 5 different states came together 18 months ago. 18 months ago, I reiterate, it was not a spontaneous job of somebody being affected by, unemployment or price rise. It was something that was planned for 18 months and an attack that penetrated through the 3 layers of security in Parliament and left the parliamentarians shell-shocked. Associated with social media page Bhagat Singh Fan Club, the accused first met in Mysuru a year and a half ago. 9 months later, the plan to intrude the Parliament building was hatched. Manoranjan from Bengaluru and Sagar from Lucknow visited Delhi and carried out the recce of Parliament premises during the monsoon session, which is when they spotted the loophole that shoes were not screened by the security apparatus and used it to hide smoke canisters. Now 4 of them have been arrested. 1 has been detained and the hunt is on for the 6th suspect. The man who is still at large is Lalit Jha, and he is said to be the mastermind of this plot. A screenshot of Jha's chat with his NGO partner Nilaksh has surfaced where he is seen telling him to ensure that the video sent to him of the commotion after the smoke attack should be kept safe. One wonders what purpose it would serve to save the video and if it was meant for further circulation to widen its impact. The Ministry of Home Affairs has now formed a committee led by CRPF DG to probe the plot and establish source of income, complicity and accountability. One can say without any compunctions that what happened in the Sansad cannot and should not be taken lightly. Fortunately, while no damage was done, it is what-ifs that make this such a mammoth failure. What if the intruders were armed? What if the gas was poisonous? And justifiably, the opposition took it upon itself to ask questions of the Home Minister. What followed was anarchy on the floor of the House that ended up in 14 members of Parliament being suspended for unruly conduct in Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha, Derek O'Brien from the Trinamool Congress. Even a senior legislator like him resorted to behavior that ended up infuriating the chair. Watch and judge for yourself if what happened behoved the stature of members of Parliament in the House. Why are you gesticulating? I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the House immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the House immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the House immediately. The House is not in order. No. Do you approve of it? He walks up to this place. Mr. Khadge, leader of the opposition, can you imagine a member walking to this place? Shameful event. My head is in shame. Something has to be done. And the honorable member, is in the habit of playing hot and cold. He grows soft as a strategy gets into hot mood. Do you approve of it? Do you approve of a member walking here? Sadly, the blame game doesn't end quite there.
While the opposition is up in arms asking why was the BJP MP who issued passes to the attackers not being brought to book, even as those asking valid questions were being suspended from the House. Facing massive backlash, BJP has now pointed out how two of the accused, Neelam Azad and Lalit Jha, have political connections as well. While Neelam Azad is said to be a long-time opponent of BJP politics and has even called for regime change in favor of the Congress and the INLD, BJP now claims that the alleged mastermind has been seen hobnobbing with TMC MLA Tapas Roy. Roy is also a minister in the Mamata Banerjee government in Bengal. Listen in to the war report. BJP MP. It could have been Jyotimani or somebody else or some MP from a minority community would have, without knowing anything, simply recommended a pass. What would have been happened now? By the time NIA would have come to my house, would have picked up me straight. We would have been branded anti-national and terrorist by now by the same Modi government and BJP. Why it's a BJP MP who did this kind of huge mistake should have an immunity? A few days ago, the BJP and the Modi government got together and expelled TMC MP Mahua Moitro from the Lok Sabha. The allegation against her was that she gave a login ID and password to somebody else, which apparently was a breach of national security. That this visitor pass was issued by these two intruders by BJP MP Pratap Simha. We demand that Pratap Simha be immediately expelled from the Lok Sabha. There is an MP who has actually given the passes for these people to come in. No action has been taken against that MP. And when we protest and we want the Prime Minister and the Home Minister to come and give a statement in the House, they're not prepared to do that. And when we protest, they are suspending all the opposition MPs. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दिस हाउस इज सुप्रीम एंड द कस्टोडियन ऑफ द हाउस इज स्पीकर, तो इसलिए हमने स्वीकारा है, सरकार ने इसको स्वीकार करके इंक्वायरी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है उससे लेकर इसमें पॉलिटिक्स करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। Even as the government promised a thorough probe and assurance that the opposition refuses to buy, the legitimate question we are asking on the news hour tonight, on a matter of such sensitivity when a country's safety is at stake, who's trivializing national security? That's the question and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate tonight, Khagin Murmu, Member of Parliament of the BJP, Gurjeet Singh Aujla, Member of Parliament of the Congress, Hanuman Beniwal, Member of Parliament of the RLP, Shehzad Poonawala, National Spokesperson of the BJP, Dr. Anand Ranganathan, author, Tehseen Poonawala, political analyst, supports the Congress party. Let me first ask Gurjeet Singh Aujla, Member of Parliament of the Congress party. Mr. Aujla, the question at the moment is that there has been a breach in the security of the parliament and on such an important issue, आपको लगता नहीं कि सारी पार्टियों को एक स्टेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए? क्योंकि आज जो हुआ है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पर ये कह देना अरे भाई ये युवा थे, इनको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इनको महंगाई की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये 1.5 साल के प्रेपरेशन के बाद हुआ है और इस बीच में इस तरह की आमने सामने अगर सरकार और विपक्ष के बीच में होगी तो क्या सिक्योरिटी का मुद्दा सामने आ पाएगा? देखिए, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है। सरकार को भी ये समझना चाहिए। कल जब ये घटना हुई है तो तब ये 2001 में सेम डे में बहुत बड़ा अटैक हुआ था और हम सब लोग वहाँ
जाकर नमन कर कर श्रद्धांजलि देकर आए थे। तो पार्लियामेंट में जब बैठे हैं, जब एक दिमाग में ये तो नहीं इस पर कोई डिबेट हो रही है, लेकिन हमने उसको श्रद्धांजलि देकर जब सब बैठे हैं तो अपना अपना काम शुरू हो गया है पार्लियामेंट का। तो एक माहौल तो है ना उस दिन का। उससे पहले कुछ लोग बाहर सोशल मीडिया पे भी धमकी दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, फलां करेंगे, और कुछ रिपोर्ट्स भी है कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ होगा। तो जब ये घटना घटी है तो बिल्कुल एक ऐसे लगा कि जैसे कोई हमला हो गया है अंदर। ये साथी मेरे बेनीवाल हैं, नागर जी थे, हम थे, सब जगदम्बेपाल है जो इनके सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और भी सीनियर लीडर थे, और सबका ध्यान स्पीकर की तरफ था। जब वो पीछे से कूदा है तो एकदम बहुत मतलब फफरा तफरी सा माहौल था। लेकिन चलो हमने सब साथियों ने मिलके उनको पकड़ा और वो बम भी छीन लिया, और उसको जो चाहे वो स्मोक बम था वो अलग बात थी। जब उनको पकड़ने गए तब थोड़ा पता कि उसने क्या रखा है क्या नहीं रखा है, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हुई, ये पूरे देश में ही नहीं कह सकते, पूरे विदेशों में भी इसके चर्चा हो गई, और बड़ी हैरानी की बात हुई, सेम डे वो फिर दोबारा 20-21 साल बाद वो सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद तो देखिए ये जो घटना हुई है, ये पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है। हम सब लोग चुन के आते हैं, देश के हर नागरिक का मानो कि वहां हिस्सा है। तो जब इतने बड़े पार्लियामेंट में, चाहे आप ये छोटी घटना मानो कुछ भी कहो, लेकिन ये इतने बड़े पार्लियामेंट में जो घटना हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धर पे चर्चा का विषय है, तो जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको तो कम से कम हाजिर हो जाना चाहिए था। कल नहीं थे, आज सुबह आ जाते, सब बैठते। सदस्य में कौन आते हैं? सभी जो चुन के लोकसभा में आए हैं, चाहे वो मंत्री है, चाहे होम मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और उनको बैठ के बातें सुनते, कहते। देखो किसको क्या कहना है, कितना नहीं कहना है, हर आदमी की एक व्यक्तिगत राय, हर आदमी हर एंगल से देखेगा। लेकिन जो जिम्मेवारी है सबको इकट्ठा करने की, वो विपक्ष की नहीं होती मैडम, वो जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष ने बात सुननी होती है। जो घर का मुखिया होता है वो सबकी बात सुनता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। घर आगे बढ़ेगा तो भी उसके पक्ष में है, घर में कोई खराबी होगी तो जवाब दे, घर का मुखिया है। तो अब देश का मुखिया कौन है मैम? प्रधानमंत्री जी हैं। वो आ जाते, सब चलो जो भी बात होती सबको साथ लेकर खड़े होकर पार्लियामेंट के सामने कहते, नहीं मेरे को पूरी बात सुनी, खड़े होकर पार्लियामेंट के सामने कहते कि ये देखिए हम देश के लिए सब मजबूती के साथ लड़े हैं, हम देश के साथ सब ऐसे ही, चाहे राजनीति में हमारा कितना भी फर्क हो, लेकिन हम देश के साथ मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और बारी ताकत को भी पता चलता। रही बात आपकी इस घटना की, कुछ लोग प्रवक्ता कह रहे हैं ये उस घटना होगी, वो घटना होगी। भाई ट्वीट हुआ, बयान दिया, वो इस घटना के बाद की बात है। अब घटना तक विराम लगाकर आप उसकी बात कीजिए कि उसके ऊपर क्या हो रहा है। अब ये सब कह रहे हैं जी, कुछ बयान आए, हमने सुना कुछ जिम्मेदार लोगों के भी कि ये कुछ लोग थे आगे हैं। तो मेरे को ये बताइए फिर युवापा के लोग आए उनके ऊपर? यदि आतंकवाद की घटना नहीं है, देश विरोधी घटना नहीं है, तो यदि जुआपा लग गया, इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो उसके बाद जवाब किसने देना है जी? वो मैं तो नहीं दे सकता, कोई दूसरा मंत्री तो नहीं दे सकता। सिक्योरिटी जो है वो HM साहब के अंदर है, होम मिनिस्टर जी के अंदर है, उनको ही जवाब देना। ठीक है, कस्टोडियन हमारे स्पीकर साहब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम सब उनसे रक्षा चाहते हैं कि वो लोकतंत्र के संविधान के तहत हमारी रक्षा भी करें, हमारी बात भी सुने, जो हम विपक्ष जो बात करता है। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। लेट मी आस्क शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला जी, it's a very reasonable demand that there has been a breach. The fact is there will be questions. The BJP MP on whose name the visitor's pass was made, he's not to be seen anywhere. Other MPs who raised questions have been suspended. Now, does that set a right precedent? Because 13 members of parliament have been suspended in Lok Sabha, 1 in Rajya Sabha. In fact, one name which has now been removed is a member of parliament who wasn't even present. He was in another state, in another city, and his name was part of those who were suspended. So, Shehzad Poonawalla, questions being raised, please respond.
सबसे पहले तो नाविका जी, मैं हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हूं, परंतु कांग्रेस सांसद औजला जी, हनुमान बेनीवाल जी, हमारे मुर्मू जी और जो इस पैनल पर नहीं है मलूक नागर जी और मनोज कोटक जी, उनके सामने नतमस्तक होना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की गरिमा को बचाने के लिए इन्होंने जो भी कार्रवाई की, तो मुझे लगता है जननायक यही कहलाते हैं, सीना तान कर केवल तमाशा देखने वाले नहीं, बल्कि जिन्होंने उस समय पर तुरंत कार्रवाई की, ये जननायक कहलाते हैं, चाहे मेरी पार्टी से हो या ना हो। अब देखिए, मैं इस विषय पर मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय है, इसको कोई भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो हुआ है। पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट के कस्टोडियन जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो स्पीकर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकर देखते हैं, और इसीलिए जो उन्होंने जांच का विषय उन्होंने बिठाया है, इसमें हर विषय पर किसके नाम पर वो उनकी एंट्री हुई, किसकी चूक रही, कहां चूक रही, सारी चीजों पर विस्तृत जांच होगी। परंतु आज तो मैंने तो नमन किया है, मैं नतमस्तक हुआ हूं इनके सामने। आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं, ये सुनिए। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा जो 5 बार विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो क्या कहते सुनिए। में जब वो कूदे, जो बेरोजगार थे, जो अपनी जिंदगी के सामने अंधेरा देख रहे थे, कूदे संसद में, सांसदों ने मारा उन्हें, न्यायपालिका देख रही है, वहां पे सुरक्षा कर्मी भी थे हाल के अंदर, वो मारते, वो पकड़ते, सांसदों ने मारा। तो जब एक जान बचाने की लड़के कार लेके भागते, उन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, क्या उन सांसदों पे आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता? न्यायपालिका देखनी। सांसदों पर आपराधिक मुकदमा चाहते कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह जी। अब आपके मेंबर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, औजला जी बता दीजिए, क्या आप लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए? दूसरी बात, आपने गृह मंत्री, बाकी हमारी सरकार की ओर से प्रहलाद जोशी जी ने और राजनाथ जी ने बयान रखा, 1974 में एक नहीं दो बार डैगर लेकर, चाकू लेकर, पिस्तौल लेकर लोग आए थे। मुझे उस समय याद नहीं कौन होम मिनिस्टर ने बयान दिया था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 1978 में भी भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, उनको तो आपने विधानसभा और लोकसभा का सदस्य बना दिया, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं, हम तो मानते कि टेररिस्ट एक्ट है, यूएपीए का चार्ज लगाए, परंतु बताइए कि एक पूरा इकोसिस्टम इनको बचाव करने में लग गया है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं बेरोजगार है, संजय राउत कहते हैं इनको मैं आतंकवादी नहीं कह सकता। जिस प्रकार से और भी अभी बयान आए सज्जन वर्मा का, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का नेक्सस जैसे ही सामने आ रहा है, और मैं आपको इसका भी प्रूफ देना चाहता हूं। यह है नीलम आजाद, नीलम आजाद बैठी है, यह है गोयत, ये गोयत जी जो है ये कांग्रेस के अधिकृत मंच पर बैठी है, और गोयत जी के साथ ये नीलम आजाद दिखाई दे रही है। अब बताइए कि नीलम आजाद का कांग्रेस पार्टी से क्या लिंक है? प्रताप सिम्हा के नाम पे पास इशू हुआ, आप उसकी जांच करवाइए, पर कांग्रेस का इससे क्या लिंक है? क्योंकि केवल यही नहीं, सुनिए, सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम आईएनएलडी को ले आएंगे। नीलम आजाद वोट के लिए कह रही है कि हम कांग्रेस को ले आएंगे, हम आईएनएलडी को ले आएंगे। और केवल यह कनेक्शन नहीं है, जो दूसरे मास्टरमाइंड है ललित झा दिखाई देते हैं इस व्यक्ति के साथ, राजेश शुक्ला के साथ, और राजेश शुक्ला वेस्ट बंगाल कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, उनकी तस्वीर टीएमसी के नेता के साथ भी है। और इसीलिए मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेक्सस के बाहर आने के बाद यह स्टैंड चेंज किया गया कि यह आतंकवादी घटना नहीं है, यह आतंकी घटना नहीं है, और इसीलिए बेरोजगारी की वजह से हुआ है? अन्यथा बता दीजिए औजला साहब कि आप इस घटना को आतंकी घटना मानते हैं, या आप मानते हैं संजय राउत और अधीर रंजन चौधरी की तरह कि यह जस्टिफाइड एक्ट है, यह तो कुछ मासूम बेरोजगार थे। और देखिए 2001 में भी अफजल गुरु को डिफेंड किया इसी प्रकार से कि देखिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और 23 वर्ष 22 वर्ष बाद भी जो ये पार्लियामेंट के सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले लोग हैं, औजला साहब आप तो इसमें नहीं है, पर आपके पार्टी के कॉलीग्स डिफेंड कर रहे हैं उनको। औजला साहब जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, आपने बड़ी तफसील से पहले बात की, मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने ये बात करी है। तो ये बात जो आपने रिकॉग्नाइज किया है, ये आज एचएम और पीएम बैठ के भी कर सकते थे। रही बात आपका ये पेंट करने का जो सिस्टम है ना कि ये किसके साथ है, वो किसके साथ है, ये आपका बहुत पुराना है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, पूरा देश देख रहा है, क्रिमिनल बंदे का कोई पार्टी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। आप में यही दिक्कत है। ये पास कहीं मेरे से निकला होता ना तो आज ने पता क्या कहना था, ये औजला अमेरिका गया था, ये कनाडा गया था, ये पन्नू के साथ था, ये फलां के साथ था। शुक्र है वो मेरा कोई सिंह नहीं उसके साथ लगा जो ऊपर से छलांग लगाई है, किसी के साथ कोई मुसलमान नाम नहीं लगा, जी शुक्र है। आप इन बातों को छोड़ दो, जो असलियत उस पर क्यों नहीं आ रहे? असलियत तो यही है कि हम कह रहे हैं कि आतंकवादी हमले की तरह हमला था, कौन नहीं कह रहा, लेकिन जब आप उसके आगे की बात कर रहे हो, फलां
एमएलए किसी की व्यक्तिगत राय क्या है, हमारे ऊपर भी कार्रवाई कर देना, कोई चिंता का विषय नहीं है। हम गलत होंगे, हमके ऊपर भी कार्रवाई करो, लेकिन वहां अभी रुको। जब हमला हुआ, भगदड़ मची, एक आतंक का माहौल था, हम सब लोगों के ऊपर हमला था जो पार्लियामेंट में बैठे थे। स्पीकर साहब भी थे, आपके मंत्री साहबान भी थे, आपके लोग भी थे, ये सब हमारे जो आपने नाम लिए, जो जिन लोगों ने हमने काम किया है, ये सब लोग थे वहां कोई जात पात पे हमला नहीं था, किसी कांग्रेस पार्टी पे हमला नहीं था, किसी बीजेपी पे हमला नहीं था। वो हमला सांसद के और देश की गरिमा के ऊपर था। अब जहां तक अटको, राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक लोग हैं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आप उसके ऊपर भी कार्रवाई कर देना, हमारे ऊपर भी कर देना, जितनी कार्रवाई चाहे दिल खोल के करना, उसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहां रुकिए, हमले के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा है बीजेपी का? औजला साहब इसको पेंट करने में बहुत रीजनेबल वो बात, वाजिब बात कर रहे हैं। पेंट करना बंद कर दीजिए आप इस बात को। औजला साहब के शब्द मैं शब्दशः कोट करता हूं, उन्होंने कहा ये देश की गरिमा पर हमला है। इसका अर्थ ये है कि ये सबसे क्रूर हमला किया गया है, और ऐसे क्रूर हमले को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। औजला जी, हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो बिल्कुल नहीं किया बेरोजगार, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं। तो अब औजला जी मुझे बताइए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, औजला साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्रॉस टॉक हो जाएगी। औजला जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात हो जाए पूरी, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। औजला साहब, अगर ये एक सेकंड, औजला साहब ऐसे क्रॉस टॉक हो जाएगी, अगर ये देश की गरिमा पर हमला है तो क्या इसे आतंकी हमला नहीं बोलना चाहिए जो हमने प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने? और चाहे जो भी इसके पीछे हो, हम उसके नब्ज तक जाएंगे, परंतु आपके नेता बोलते हैं इसका तो बेरोजगारी कारण है, मैं आतंकवादी नहीं बोलूंगा। अब आप बताइए कि देश की गरिमा पर हमला करने वाला आतंकवादी है, यूएपीए ठीक लगा है या नहीं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आतंकवादी हमला है, लेकिन क्या आपके आतंकवादी हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का आना नहीं बनता था? यहां मेंबर है, यहां लोकतंत्र का मंदिर है, क्या होम मिनिस्टर का आना नहीं बनता था? सवाल कहीं है, सवाल कहीं है, और कुछ सही सवाल है, कुछ राजनीतिक है। शहजाद जी मैं आऊंगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल है और हम सब उनको भी नमन करना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने जिस तरह से कल उस आरोपी को पकड़ा, मैं हनुमान बेनीवाल जी, इस देश और हमारे टाइम्स नाउ के सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको सलाम करती हूं। बेनीवाल जी, सवाल इस वक्त तहकीकात का है, इन्वेस्टिगेशन का है, या सवाल इस बात का है कि कार्रवाई कौन किस पे क्या करेगा और बयान कौन किस पर क्या देगा? बिना इन्वेस्टिगेशन के बयान क्या हो सकता है? क्या आप उससे सेटिस्फाइड होंगे? और दूसरी बात कि राजनीति कहीं ना कहीं तो हो भी रही। नविका जी, कल ओजला जी भी बैठे हैं, जब आरोपी ये जिस वीडियो के अंदर कूद रहा है, जब मैंने मुड़ के पीछे देखा, एक लटक रहा था, एक जंप करता हुआ था, बहुत ट्रेंड व्यक्ति था ये, मैंने इसको दबोच लिया, और ओजला जी ने दूसरा व्यक्ति जो था, जो सेकंड था, उसको पकड़ा जाके, और निश्चित रूप से उनके हाथ में जो बमनुमा चीज थी, जो स्प्रे था, जो गैस थी, वो जहरीली गैस भी हो सकती थी, कोई उनके पास वेपन भी हो सकता था। हमने प्रयास किया हमारे बाकी भाइयों की जान बचे, सबकी जान बचे, और वो रक्षा मंत्री को टारगेट करके, लोकसभा अध्यक्ष को टारगेट करके, और ये आतंकी हमला था, ये आतंकवादी है। आज जो बीजेपी के नेता भी बता रहे थे, ये निश्चित रूप से आतंकी हमला। और आतंकी हमला क्या होता है? क्या सबकी जान जानी जरूरी थोड़ी होती है? ये जो 22 साल पहले दंश पार्लियामेंट ने झेला था, वापिस 22 साल बाद इसी दिन ये साबित किया कि आप लोग सुरक्षित नहीं हो, हम हिंदुस्तान को इस तरह करने के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं। और ये इनका नेक्सस, पूरा जो परिवार इनका बोल रहा था, 1.5 साल से कॉन्फ्रेंस ये लोग कर रहे थे, अलग अलग स्टेट के लोग थे, और बहुत सोची समझी चाल के तहत आए। दूसरा नविका जी, मेरा सवाल ये था कि 2 लोग इनको मोटिवेट कर रहे थे पार्लियामेंट के उस विजिटर गैलरी से, एक लेडी और एक आदमी और है, तो उनको क्यों नहीं बता रहे हो आप? 2 दिन हो गई, लोकसभा सचिवालय को फुटेज देने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जी ने कल कह दिया कि तो मामूली घटना थी। मामूली घटना कैसे थी? क्या वो वेट कर रहे थे? जिस तरह कोविड में 50 लाख लोग मरे, क्या वेट कर रहे थे क्या कि 10, 15, 20 सांसद मर जाए और उसके बाद हम बयान दें? लोकसभा अध्यक्ष जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बिना कोई वाद विवाद के आज पार्लियामेंट के अंदर आके बड़ा मन रख के उनको जवाब देना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और 15 सांसदों को तो सस्पेंड किया है।
ये मजाक बना के रख दिया। ये क्या बात हुई बताओ आप? कोई आदमी अगर एमपी अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं कहेगा, क्या छत पे खड़ा होकर कहेगा, बाहर सड़क पे कहेगा? ये एक तरीके की तानाशाही है, ये चूक हुई है और चूक इनकी वजह से हुई। कौन उसके लिए जिम्मेदार है? मैं तो ये कहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष को जब आप मानते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय जिम्मेदार है। करोड़ों रुपए लगा के नई पार्लियामेंट बना दी, आनंद फान में आपने शिफ्ट कर दिया, बखान किए, ये कर दिया वो कर दिया, इतिहास बना दिया और ये इतिहास की टाई टाई फीस हो गई कल। अच्छा तो ये होता सब लोग मिलके बात करते, ये साजिश क्या थी इसका पर्दाफाश होता और कुछ दूसरे बयान, जिस तरह विधायक का बयान इन एमपी साहब ने सुनाया, बीजेपी के हमारे नेता ने, ये गलत बयान वो दे रहे थे कि सांसदों पे आपराधिक मुकदमा, वो शायद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी जो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। लेकिन आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई घुस जाए, पार्लियामेंट में कोई घुस जाए, बहुत सही, बहुत जायज, तो बहुत जायज चीजें आप कह रहे हैं। और मुर्मू जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल यह है कि क्या सस्पेंशन पार्लियामेंटेरियंस का, सांसदों का, ये हल है जो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है, या सुरक्षा में क्या सेंध हुई, कैसे हुई और आगे क्या करना है इस पर चर्चा होनी चाहिए, या एक दूसरे पक्ष और विपक्ष के बीच बस आर पार की लड़ाई होनी चाहिए? देखिए, हमारे पार्लियामेंट, ये हमारे लोकसभा या सदन, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है जी। इसमें क्या हुआ तो हमें सभी जो सांसद हमको चुना के, जो जनता ने हमको चुन के यहाँ पे भिजवाया ताकि हम यहाँ जनता का जो मांग, जो वहाँ का जो जनता जो चाह रहा है, इसको हम ये सदन पे हम उठाए, वहाँ पे हम बोले। लेकिन जो हमारे जो सदन जैसे हो रहा है, लेकिन सदन तो ऐसे नहीं है। जो सदन का गरिमा को भी हम सब हमके बजाय रखे, उसको भी हम रखे, गरिमा को सुरक्षित रखे। लेकिन गरिमा को भंग करके वहाँ पे कोई हमलाबाजी, कोई वहाँ पे क्या हल्लाबाजी करने के लिए सदन नहीं है। हमारे आदरणीय जो हमारे स्पीकर साहब, वो बार बार बोलते हैं, तो आप बोलिए, आपका ये क्या चर्चा कीजिए, इसके ऊपर तो अभी जांच चल रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी। Fair point, but Anand Ranganathan, the question is statement first, or the discipline in the House. What comes first? Agitation amongst parliamentarians of the opposition, I think, is a normal reaction to the huge security breach that happened. That nothing really went wrong, nobody was hurt, nothing untoward happened, but the scare was real and live and on television. I want to ask you, where do you stand on this? Has the government taken, or has the speaker and the chairman of the Rajya Sabha taken it too far by suspending so many members of parliament, or somewhere in the middle of the politics between the treasury benches and the opposition benches, the real issue of security has got drowned? Good evening, Navika, and good evening to my fellow panelists. I need to make 4 points and I'll be very brief about them. But first of all, I want to really congratulate and thank Mr. Ojla and Mr. Beniwal for the amazing service that they provided to the nation. Thank you so much, sir. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो अभी बोला है इस डिबेट में, वो एकदम सही सवाल पूछे हैं, देश के हित में सवाल पूछे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे भाई शहजाद ने एडमिट किया है एज अ बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव दैट व्हाट हैपेंड देयर यस्टरडे वाज अ टेरर एक्ट। तो ओजला साहब ने जो पूछा है, अगर पार्लियामेंट में टेरर एक्ट हुआ तो why is it that the Prime Minister has as yet not commented on a terror attack on Parliament? It is unprecedented. He should have at least tweeted about it, like he tweeted about the Pulwama attack and said that we will take stock of the situation, we will avenge that. Complete silence from all the bigwigs of the BJP. So what kind of a terror attack is on Parliament, on the temple of democracy, that the Prime Minister is silent 36 hours into the thing? So I thank Mr. Ojla for asking this question.
Navika, sadly, we are missing the woods for the trees because, as far as I'm concerned, and this is beyond the suspension of the 14 MPs who indulged in hooliganism today. I mean, they had no business to do that. It's right that they've been suspended. You cannot create ruckus and cause anarchy in the house. So good that that happened. But it is not about the BJP MP at all. I mean, look at the irony that quote unquote urban Naxal and Andolan Jeevis are castigating the BJP MP for giving a pass to an Andolan Jeevi and urban Naxal. Kal ko agar, you know, if, for example, the BJP MP were to give a pass to Prashant Bhushan or Arundhati Roy or I don't know, Gautam Navlakha, would all these bunch of chauthi fails be angry at the BJP MP? It is not about the ideology. This is where I think cutting across party lines, everyone's got it wrong. It is plain and simple about the security lapse that allowed a explosive to be smuggled in. And I cannot explain to you, Navika, please give me a couple of minutes how grave this situation is. मैं अभी भी कह रहा हूं कि situation टली नहीं है. आप इसको smoke bomb कह रहे हैं. ये anthrax भी हो सकता है. आपको कैसे पता? It takes 24 to 48 hours for the anthrax to be detected. Weeks for the anthrax to take part in a human body before the mortality is caused. And you know, 1 gram of anthrax is enough to kill 100 million people because it contains 1 trillion spores and 10,000 spores are enough to kill one person. So how do we know this is an innocent smoke bomb? Number two, how on earth is it possible that a plastic canister containing a smoke bomb can be detected in an airport but cannot be detected inside a parliament? Why does the parliament not have a backscatter X-ray? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ. So situation ये नहीं है कि किसी आंदोलन जीवी very pertinent question, Shehzad Poonawalla. We live in times where you know, these kind of dangers are live kicking across the world. We have such arrangements at the airport. It's not like we don't have the technology or wherewithal to do this kind of a frisking. But why did the lapse happen? We come back to the moot point. These are absolutely the questions we all need to get an answer from the Parliament Secretariat. And the Parliament Secretariat is answerable under the Speaker, and the Speaker has ordered for an inquiry. And therefore, once the report comes out, we'll all be better enlightened. But I'm glad that Aujla ji, also Mr. Beniwal and Anand have said that this is a terror act. In fact, that is what we've argued in front of the court, and the court has remanded. But Aujla ji, suniye, Sanjay Raut. उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, मार्ग से भटके हुए नागरिक है. लास्ट टाइम कब सुना था? याकूब मेमन भटका हुआ व्यक्ति है, अफजल गुरु हालात का मारा है, और अब ये लोग भी भटके हुए. और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए हनुमान जी ने क्या बोला, 1.5 साल से इनका प्लानिंग चल रहा था, और 1.5 साल में यही तस्वीर है कि वो इनके संपर्क में थी कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का और वामपंथियों के एनजीओ का नेक्सस का लिंक सामने आ रहा है. तो किसी प्रकार से इसको डाउन प्ले करने के लिए औजला जी, तो देखिए मैं उनको मानता हूं कि ही इज अ मैवरिक इन द पार्टी, इसलिए वो यहां पर बैठे G14 की चिंता नहीं कर रहे हैं. परंतु सुनिए, जो इनकी ऑफिशियल लाइन है वो यही है. सॉरी, मैं हमेशा आपके शो पे ये बोल देता हूं, आते रहे लोग कांग्रेस के, कमलनाथ जी भी आए थे, रेवान जी भी आए थे. परंतु ऑन अ सीरियस नोट, औजला जी बताइए, अधीर रंजन चौधरी का और संजय राउत का खंडन करेंगे आप तो स्वयं मान रहे हैं, हनुमान जी भी मान रहे हैं. आप बताइए, आपके नेता बोल रहे कि आतंकी घटना ही नहीं है. आप बताइए, मेरी बात सुनिए. पहले प्राइम मिनिस्टर साहब होम जो पढ़ा आपने क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए. मैं ये कह रहा हूं, अधीर रंजन जी ने जो बोला है, जो कहा है, आपके पूरे चैनल पे एक ही डिबेट चल रही है. डिबेट होनी चाहिए कि वो लोग कौन थे, वो कैसे घुसे हैं, और जो हमारे 543 मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्या आज उनका पार्लियामेंट में हाजिर होना जरूरी नहीं था? क्या जो कस्टोडियन है वो तो है, क्या जो वहां के मिनिस्टर हैं, क्या होम मिनिस्टर हैं? आप एक तरफ कह रहे हो टेरर अटैक है, जो आपा भी लगाया, मैं आपके साथ हूं, ठीक है टेरर अटैक है. औजला साहब टोटली जो आप सवाल उठा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तहसीन पूनावाला, पार्लियामेंट सरकार के इशारों पर चलती है. प्लीज 1 मिनट. पार्लियामेंट तो ये हमेशा कहते नहीं, तो पार्लियामेंट ऑपोजिशन की होती है, ये तो लेकिन तहसीन पूनावाला, I will have to raise the question and ask you a simple question. I'm sorry, I'm short on time, but the question is only this: can you call them people who are kids who have just got deviated from the normal path of life? क्या आप इनको भटके हुए बच्चे कहेंगे?
Navika, just let's come to this is this is a stupid thing to say. Just because somebody outside Parliament says something is not important. Can I just say something very important? There is a terror attack that has happened on our Parliament. If it's happened 1.5 years ago, this planning, what was our intelligence doing? Time and again against under the Honorable Home Minister, be it China, be it to Delhi riots, the intelligence is failing. It is unprecedented that the Honorable Home Minister right now is live on a TV channel doing a debate, but he is not ready to talk to Parliament, the representation of our people. Number two, Aujla ji, I wanted to congratulate him and Beniwal ji. If he shows his hands, Aujla ji, if you show your hands, the yellow is still not gone from his hand. Can I ask you, has the government taken the initiative to take him to a hospital to check if the chemical analysis is done? He's sitting here. They haven't done it. What is this government? Again, he's interrupting. Is that BJP has to stop? Well, I completely understand and I completely appreciate your concern, and we are concerned about our members of Parliament as well. The question here is that we are talking about a terror attack. Nobody should go out of their way to try and minimize this entire incident, and the point here is that this is a matter for introspection, this is a matter for security analysis, investigation, but this is certainly not a matter for politics. Can every political party actually refrain from creating politics and look at the institution of Parliament being defended from such breaches in the future? Because that is the moot point. Thanking all my guests joining me on debate number 1.